alaikum, welcome to my YouTube channel. Today my topic is limiting factor in photosynthesis. Photosynthesis में limiting factors. Any environment factors, the absence or deficiency of which can decrease the rate of a metabolic reaction is called limiting factor for that reactions. ऐसा मामूलियाती अंसर जिसकी गैर मौजूदगी या किसी कमी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रफ्तार को कम कर दे, इस मखसूस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं. However, at much higher light intensity, the rate of photosynthesis become constant. माहौल के कई अनासिर मसलन रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और पानी की दस्तयाबी फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं. Many factors like light intensity, concentration of carbon dioxide, availability of water act as in limiting factor for photosynthesis. Effect of light intensity and temperature. The rate of photosynthesis varies with light intensity. रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का असर. रोशनी की शिद्दत के साथ फोटोसिंथेसिस की रफ्तार तब्दील होती रहती है. It decreases as light intensity decreases and increases and intensity increases. रोशनी की शिद्दत कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम होती है और शिद्दत बढ़ने से बढ़ती है. ताहम रोशनी की बहुत ज़्यादा शदीद हो जाने पर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार मज़ीद नहीं बढ़ती और मुस्तकिल हो जाती है. However, at much higher light intensity, the rate of photosynthesis become constant. The rate of photosynthesis decreases with decrease in temperature. It increases as in temperature is increased over a limited range, but if light intensity is low, increases the temperature has little influence on the rate of photosynthesis. टेम्परेचर कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो होती है वो कम हो जाती है. जब टेम्परेचर का मुनासिब हद तक बढ़ने लगे तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में इजाफा हो जाता है. लेकिन अगर रोशनी की शिद्दत मुस्तकिल रहे तो टेम्परेचर बढ़ने का फोटोसिंथेसिस की रफ्तार पर असर कम होता है. Effect of carbon dioxide concentration. As carbon dioxide concentration rises, the rate of photosynthesis goes on increasing until limited by other factors. It increases the carbon dioxide concentration beyond a certain level, causes the closure of stomata, and it decreases the rate of photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार उस वक्त तक बढ़ती है जब तक दूसरे वाले उसे कम न कर दें. कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में एक हद से ज़्यादा होने पर इजाफा जो होता है वो स्टोमेटा जो होता है बंद होने की वजह बनता है और इसे फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो होता है उसको कम कर देता है. And the next is respiration. When we burn a fuel, it utilizes oxygen and yields energy in the form of light, heat, etc. जब हम ईंधन जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, रोशनी और हवा की शक्ल में तवानाई पैदा करता है. In this burning process, जलने के इस अमल को oxygen is used to break the CH bonds present in fuel molecules. जलने के इस अमल में ऑक्सीजन ईंधन के मॉलिक्यूल्स में मौजूद CH बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है. इन सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, ऑर्गेनिजम्स जानदार यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स. द ब्रेकडाउन यील्ड्स एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP. इस अमल में भी एनर्जी पैदा होती है जिसे ATP मॉलिक्यूल में बदल दिया जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान the CH bonds are broken by oxidation reduction reaction and so carbon dioxide and water are also produced. इस अमल में CH bonds को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है. इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं. The cellular energy yielding process is called cellular respiration. सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने वाले अमल को cellular respiration कहते हैं. The most common fuel used by cell to get energy by cellular respiration is glucose. The way glucose is oxidized depends on the availability of oxygen. The cellular respiration occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration, while the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन ग्लूकोज है. ग्लूकोज को इस तरह से इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस बात का निसार कि ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर होता है. ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाले सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जबकि वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एनएरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट टाइप हो सकती है. एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है
और एनारोबिक रिस्पिरेशन भी हो सकती है। एक होती है फर्मेंटेशन और दूसरे होते हैं और अदर जो होती है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकती है।